Namaskar, all of you. How are you all? I hope you all are well and you are also doing your studies. It is your computer class for class 9th, chapter 14. Chapter name is Effective Presentation, part 2. Okay. In our last class, we have discussed about adding slide transition, that how we can add a slide transition in a slide, modifying the speed of the slide transition, how we can change the speed of transition and apply transition to all the slides, that how we can apply transition to the all slides. So these three topics we have discussed in our last class. Now in today's class we will discuss about some custom animations, that how we can use custom animation and set the timing of custom animation, that how we can set the timing of custom animation. So for this topic I'm opening PowerPoint presentation. With the help of PowerPoint presentation we will understand the topic in a better way. So it is PowerPoint. I'm opening this. Yeah, it's a blank slide. Yes, like I have written here, Parivartan. Parivartan. Okay, and then I'm taking here some designs, like some shapes. Like I'm taking this shape, change the color of this shape like yellow, and I'm taking this shape and change the color for this also. Okay, so these are some shapes, these are some random shapes which I have taken for your better understanding, nothing else. There is no use of these shapes, but I'm taking this for your understanding point of view. Yes. So now first of all, student, what is custom animation? That custom animation होता क्या है? So custom animation are effects that help add motion to the element, such as text boxes, pictures, slide, custom animations, and these custom animation add emphasis and chronology to the element on the slide and making presentation effective. कस्टम एनिमेशन से हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेशन दे सकते हैं, ठीक है, उसे लाइवली बना सकते हैं, और कस्टम एनिमेशन की हेल्प से हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको और भी इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है. सो देयर आर some type of custom animations are here. So today we are talking about some custom animation. So first of all, you have to click on this animation. And from this animation, here is this tag is here, add animation. Okay, but it is disable now. अभी ये disable है. क्यों? क्योंकि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया है जिसके लिए हमें एनिमेशन यूज करना है, ठीक है. सो लाइक आई एम यूजिंग दिस टेक्स्ट कि मुझे ये जो परिवर्तन वर्ड है इसमें एनिमेशन देना है. सो इट इज एड एनिमेशन इन द एडवांस एनिमेटेड ग्रुप. क्लिक ऑन दिस एड एनिमेशन. जब आप इस एड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एनिमेशंस दिखाई देंगे. आपको एनिमेशंस यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, देखिए, दीज आर ऑल्सो सम एनिमेशंस आर here. Okay, so
you can add any animation in your object from here and from here also. कहीं से भी आप एनिमेशन चेंज कर सकते हैं, बोथ आर द सेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमें इसमें एनिमेशन देना है तो सेलेक्ट दिस एंड देन क्लिक हियर. ओके, so this is add animation. You will go to the animation tab and then click on this add animation. Okay, and from add animation, first animation is here, entrance. So these all are the types of entrance animation. ठीक है, entrance animation के types हैं ये सारे. First animation is appear, then fade, fly in, float in, split. These all are the types of entrance animation. जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे देखिए इस पे क्लिक करिए, तो इस पे क्लिक करने से क्या हुआ, जो हमारा टेक्स्ट है जिसको हमको एनिमेशन देना है वो बाहर से अंदर की तरफ एंटर हुआ. दैट्स व्हाई इट इज एंट्रेंस एनिमेशन. ठीक है, इसीलिए इसको एंट्रेंस एनिमेशन बोला जाता है. नेक्स्ट एनिमेशन इज एम्फेसिस एनिमेशन. ओके, सो अगर आप सेम यही एम्फेसिस में यूज करेंगे, लाइक select this text and then I use तो देखिए एम्फेसिस में क्या हो रहा है, एम्फेसिस में ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है या जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे ही रह के एनिमेट हो रहा है. लाइक उसका कलर चेंज हो रहा है, वो फेड हो रहा है या वो गोल गोल घूम रहा है. आई एम शोइंग यू सम मोर एनिमेशन इन दिस, लाइक दिस. ठीक है, तो अभी इस एनिमेशन में क्या हुआ, ये इस तरीके से इसने मूव किया. ये सारे एनिमेशन हम हटा देंगे. तो अभी देखिए जब हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने यहाँ से एंट्रेंस एनिमेशन दिया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी एनिमेशन को यूज करे लेकिन वो बाहर से अंदर एंटर ही करेगा. देखिए व्हील यूज किया हमने तो वो व्हील की तरह बाहर से अंदर आया है. ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे एम्फेसिस एनिमेशन लिया तो एम्फेसिस एनिमेशन में वो अपनी जगह पे ही रह के उसने मूव किया. लाइक अगर आपने जैसे ये देखा तो देखिए ये अपनी जगह पे ही और उसने अपनी जगह पे वेव किया. सो इट मीन्स कि एंट्रेंस एनिमेशन में बाहर से अंदर आएगा आपका ऑब्जेक्ट. अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को बाद में बाहर से अंदर एंटर करवाना है तो आप उसके लिए एंट्रेंस एनिमेशन यूज करेंगे. और अगर आपको ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पे ही रखना है और वहीं पे ही रहते हुए उसे कुछ मूवमेंट देनी है तो आप यहाँ पे एम्फेसिस एनिमेशन यूज करेंगे. थर्ड एनिमेशन इज एग्जिट एनिमेशन. एग्जिट एनिमेशन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिसअपियर होगा वहां से, मतलब वो एग्जिट करेगा अंदर से बाहर. कैसे, देखिए जैसे मैंने ये वाला, तो क्या हुआ, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव हो गया. ठीक है, अभी मैं आपको ये जो एनिमेशन है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके दिखाती हूँ. ठीक है, लाइक हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को हमने एनिमेशन दे दिया एंट्रेंस. ठीक है, देन स्माइली सेलेक्ट की हमने. ठीक है, स्माइली को मैंने एनिमेशन दे दिया फिल कलर. तो इसका क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, देन इट इज सर्कल. सर्कल को हमने एनिमेशन दे दिया एग्जिट में से कोई कि ये जो है एग्जिट हो जाए, मतलब डिसअपियर हो जाए.
एंड एरो को हमने एनिमेशन दे दिया एंट्रेंस। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, इन सब एनिमेशंस का अलग अलग रिलेवेंस कैसे है। आपने क्लिक किया स्लाइड शो पे एंड फ्रॉम बिगनिंग। अब देखिए जैसे ही हमारी स्लाइड आएगी, जो जिन ऑब्जेक्ट को हमने एनिमेशन दिया है एंट्रेंस, वो हमें स्लाइड पे नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, वो कब आएंगे, जब हम क्लिक करेंगे तो वो बाहर से अंदर एंटर करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को हमने एंट्रेंस दिया था तो इसने क्या किया, बाहर से अंदर एंटर किया। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, लाइक स्माइली इज हियर, स्माइली हमें दिखाई दे रही है, स्माइली को हमने एनिमेशन दिया है एम्फेसिस। तो जब हम क्लिक करेंगे तो स्माइली यहीं पे रह के इसका कलर चेंज हो गया। इट मीन्स ये यहीं पे, ये एम्फेसिस मीन्स ना ऑब्जेक्ट अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, अपनी जगह पे ही वो कुछ मूवमेंट या कोई एनिमेशन शो करेगा। देन सर्कल इज हियर, अब सर्कल को हमने एनिमेशन दिया है एग्जिट। तो देखिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये एग्जिट हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। एंड देन एरो, तो एरो को जब हम क्लिक करेंगे तो एरो जो है वो, एरो भी एंट्रेंस एनिमेशन में था, इसलिए एरो ने बाहर से अंदर की तरफ एंटर किया। ठीक है, सो लाइक दिस we can use these all animation. First is entrance, second one is emphasis, and then third one is exit. तो ये तीनों एनिमेशन जो है ये इस तरीके से यूज हो सकते हैं। नाउ हाउ यू कैन सेट द टाइमिंग ऑफ कस्टम एनिमेशन। तो आप कस्टम एनिमेशन का टाइमिंग भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक आपको एनिमेशन कब स्टार्ट करना है, ऑन क्लिक स्टार्ट करना है, तो यू कैन क्लिक ऑन क्लिक। अगर आपने यहाँ पे विद प्रीवियस कर दिया तो क्या होगा, आपका जो एनिमेशन है वो पहले वाले एनिमेशन के साथ में ही प्ले हो जाएगा। लाइक हमारा सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले परिवर्तन आया, देन इसका कलर चेंज हुआ, देन ये डिसअपियर हुआ, देन इसने एंटर किया। तो अगर हम इसको विद प्रीवियस कर देंगे तो ये एनिमेशन इसके साथ वर्क करेगा, ये एनिमेशन इसके साथ, तो ये सारे एनिमेशन एक साथ वर्क करेंगे अगर हम इन पे क्लिक करके इनको विद प्रीवियस कर देते हैं यहाँ से। तो अभी देखिए हम सारे एनिमेशंस को विद प्रीवियस कर देते हैं। यहाँ से मैंने हर एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और उसके एनिमेशन को मैंने विद प्रीवियस कर दिया। अब देखिए क्या होता है, स्लाइड शो पे क्लिक किया हमने और हमने क्लिक कर दिया फ्रॉम बिगनिंग पे, तो सारे एनिमेशन एक साथ वर्क हुए। इसका भी कलर चेंज हो गया, इसने एंटर किया, इसने भी एंटर किया और सर्कल जो है वो डिसअपियर हो गया। इट मीन्स जब हमें सारे एनिमेशन एक साथ चाहिए तो हम विद प्रीवियस क्लिक करेंगे, और जब हमें हर एनिमेशन के बाद दूसरा एनिमेशन चाहिए, लाइक वी डोंट वांट टू क्लिक ऑन द माउस, हमें क्लिक नहीं करना है, बस हमें ये चाहिए कि जैसे ही परिवर्तन ने एंटर किया वैसे ही स्माइली का कलर चेंज हो जाए और उसके बाद ये डिसअपियर हो जाए और उसके बाद एरो आ जाए। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमने परिवर्तन को कर दिया ऑन क्लिक, फिर हमने स्माइली को कर दिया आफ्टर प्रीवियस कि इसके बाद ये हो जाए, देन इसके बाद में हमने इसको भी कर दिया आफ्टर प्रीवियस एंड दिस इज ऑल्सो आफ्टर प्रीवियस। अब देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, सबसे पहले परिवर्तन आया, देन कलर चेंज हुआ, देन डिसअपियर हुआ और देन ये आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स एक के बाद में एक आफ्टर प्रीवियस, मतलब पहले वाले के बाद में नेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली हो गया। इसके बाद आप ड्यूरेशन दे सकते हैं, यहाँ पे एनिमेशन का ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं। लाइक आई वांट टू, ये जो एनिमेशन है इस एनिमेशन का मुझे ड्यूरेशन बढ़ाना है और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 3। तो यहाँ पे देखिए आप इसको स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करेंगे तो जो ये परिवर्तन है इसका जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो गई और अब ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पहले ये 2 सेकेंड्स के लिए था, अब ये 4 सेकेंड्स के लिए, या जो भी हमने टाइम यहाँ पे अप्लाई किया लाइक 3.75 सेकेंड्स,
तो ये उतनी देर के लिए यहाँ पे आ गया। देन डिले भी कर सकते हैं आप कि ये जो एनिमेशन है ये कितनी देर बाद स्टार्ट होना चाहिए। तो लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया 1। तो अब देखिए ये वाला जो एनिमेशन है ये थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। फर्स्ट ये आया, ठीक है, देन इसका कलर चेंज हुआ। अब ये थोड़ी देर बाद में, पहले ये इसके साथ ही डिसअपियर हो रहा था लेकिन अभी ये थोड़ी देर बाद। तो यहाँ से आप जो है अपने एनिमेशन का टाइम चेंज कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं कि वो कितनी देर के लिए रहेगा, और पर्टिकुलर एनिमेशन पहले वाले एनिमेशन के कितनी देर बाद आना चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, so we have discussed these two topics in today's class. First is what is custom animation. There are 4 type of custom animation: entrance, exit, emphasis and motion path. ठीक है, motion path we will discuss in our next class. These 3 animation we have discussed in today's class, and how we can set the timing of custom animation we also have discussed this. Okay, so do complete all your work in your notebooks. I will share your homework in your class group, so do complete your homework. Do learn all the chapters. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe and keep learning. Thank you so much. Have a nice day.